important aspects of research. The problem is that these are the technical aspects, and people don't usually know all of those technical things. So the first is the methodology, and secondly, the analysis. Some people say analysis is the hardest part of the research, whereas for me, I would like to say that it's, to be very honest, easiest for me. And I want you guys to say the same. I want it to be the easiest for you guys as well. So today's presentation, I hope that you will learn the basics, and inshallah, you will also be able to say that research analysis is nothing hard or it's nothing difficult, and you can get it done in an instant, honestly. Secondly, I would also like to state that I would be sharing this presentation after the webinar to all of you in the participants group, and you guys can have, I have sent the SPSS link and the data sheet as well. I hope you have it downloaded, because we will be using it during the webinar. And once you have the presentation as well, you can also see that, yeah, right now, this is my LinkedIn and my Instagram. You can also approach me on these socials if you want to ask anything. So my main goal is to facilitate all of you. And if there are any questions, leave them in the chat box. I will answer them after the break for 5 minutes, and then after the webinar for as long as you guys want. Okay. So let's start the presentation now. I hope the maximum percentage of people have joined. Research analysis. The analysis is defined as something in which you see data, you see things which do not make sense, and you try to make sense of those things. You see that certain participants give a certain subset of answers, the others give another subset. Why is there the difference in the answers? Why is that these participants gave different answers and the others gave different? Moreover, if there's at any time I stutter, or is there at any time a lag of the presentation, kindly notify me. I will pause, wait for the connection to get better, or turn off the camera, as the camera also takes internet as well. Anyways, first of all, qualitative versus quantitative data. Now, data has two types, qualitative and quantitative. Qualitative means wordy. I will also be shifting to Urdu so that people can better understand. सिंपल अल्फाज में क्वालिटेटिव का मतलब है आपका नाम, आपका जेंडर, आपका मजहब। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मर्द हूँ, फिजान नाम है, शादीशुदा नहीं हूँ। ये जो चीजें हैं ना, जिनमें नंबर नहीं है, हाँ ना, नाम, ये क्या, क्यों, वो वाली चीजें जो है, उनको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं. Whereas quantitative data is basically numerical data which deals with the numbers, such as income और my father's income. यानी कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, वो क्वांटिटेटिव होता है. So this is the main difference between the data. Now data, which I will come to later. First of all, qualitative data is also known as categorical data. Categorical data is basically your, then again, name, gender, or position, etc. Now you would say that position is number, but the thing is, it's not like written like this. It's written as first. You have the first position, then the second position, then the third position. There is no like you can't have a 1.5 position or 2.5 position. It's discrete. It's like proper first, then second, then third. You can't have anything in between. That's known as ordinal data. So coming to the categorical data, ask your gender, you're a male. And if I ask the other one, she's a female. You can't like differentiate between male or female as in that the male are better or the female are better. Both are equal. You can't say anything about that. Moreover, if I ask you your, let's say, street number. Now, street number can't be 14.5 or 15.5. It can be only 14, 15. Now, that's categorical data because that street number is 14 for you. And another person who lives in 15th street number is not neither better, not loser to you. They are on the same level of you. That's known as nominal, in which everything is equal. It has no order, such as male, female, gender. Now, ordinal data is something that has an order to it. यानी कि पहली चीज सबसे टॉप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, डिस्क्रीट बने हुए हैं चीजें. आपके टॉप पे है, फिर हाफ, फिर कम, फिर कहते हैं वो बिल्कुल कम, फिर बिल्कुल बॉटम पे. दैट्स नोन एज ऑर्डिनल डेटा. जैसे फर्स्ट पोजीशन सबसे टॉप, सेकंड पोजीशन अच्छा है लेकिन फर्स्ट से जितना नहीं है, थर्ड पोजीशन दोनों से नीचे है लेकिन बाकियों से ऊपर है,
दैट्स नोन एज ऑर्डिनल डेटा। और कैटेगोरिकल डेटा की सबसे जो मेन बात है वो होती है उसमें पॉइंट्स नहीं होते। कैनॉट हैव 1.5 पोजीशन और 2.5 पोजीशन और लिव ऑन स्ट्रीट 4.5 या हैव हाउस नंबर 250.5, नहीं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। um, अब आवाज आ रही है मेरी? एक्चुअली रुको, आई एम स्पीकिंग मोर लाउडली नाउ, एंड इफ यू कांट हियर मी ना, तो ये चेक करो कि मे बी यू हैव लाइक वॉल्यूम लोअर्ड ऑन द मोबाइल, क्योंकि ये भी कवर होता है पीपल हैव देयर वॉल्यूम एट 70%। मोर ओवर आई आल्सो ट्राई कि मैं थोड़ा लाउड स्पीक करूं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू माय अटेंशन। न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है, इट हैज डेसिमल्स। ठीक, अब इसमें भी एक टाइप होती है, मैं बताता हूँ कैसे। डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। अब जो डिस्क्रीट डेटा है इसको आप डेसिमल में लेके जा सकते हैं, तो फिर डिस्क्रीट में और ऑर्डिनल में क्या फर्क हुआ ये मैं भी बताऊंगा। जो डिस्क्रीट है उसमें आपके पास सैंपल साइज है 200 लोगों का। इन 200 लोगों में कोई भी बंदा एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर नहीं है, बस 200 लोग हैं, आपके लिए सब बराबर है, जस्ट लाइक नॉमिनल, सब बराबर है। लेकिन इसके अंदर जो डिस्क्रीट डेटा है इसका नंबर है 200 पीपल है, ना ना ये कि मेल या फीमेल। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि सैंपल साइज में 100 लोग हैं तो दिस इज डिस्क्रीट डेटा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 100 मेल्स हैं, दैट इज नॉमिनल डेटा। ये डिफरेंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो वो है अपना आपका टेस्ट होता है, मैं एक और example लिखता हूँ, जैसे कि टेस्ट है, टेस्ट पे लेट्स से आपके टेस्ट पे लोगों ने एमसीक्यूज रखे हुए हैं और हर एमसीक्यू का 0.5 नंबर है। अगर 20 एमसीक्यूज हैं और एक एमसीक्यू का 0.5 है तो वो आपको 10 मार्क्स देंगे। अब इस 10 मार्क्स में लेट्स से किसी बंदे ने 15 एमसीक्यू सही किए तो 15 का हाफ यानी 7.5 मार्क्स इसको मिलेंगे 10 में से। ही कैनॉट गेट 7.25 या 7.5, ओ सॉरी 7.75, ये नहीं आ सकते क्योंकि दीज आर नॉट सिंपली पॉसिबल। आपका एमसीक्यू सही हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपकी डिस्क्रीट नंबर जो है वो 7.5 आउट ऑफ 10। उसके मुकाबले में जो ऑर्डिनल डेटा है ये होता है पोजीशन वाइज। ठीक, ये 7.5 वाला ये बेहतर है 7 वाले से, नहीं, क्योंकि ऑर्डिनल में डेसिमल्स नहीं आते। इसमें 0.5 वाला डेसिमल आ सकता है। 0.5 वाला डेसिमल क्यों आ सकता है? क्योंकि हमारे जो पीछे यूनिट है एमसीक्यूज की वो 1, उसमें 0.5 आ रहा है। अब भाई समझ, कॉन्सेप्ट समझ आया कि वी कैन नॉट डिवाइड इनटू डेसिमल्स, लेकिन हम जो यूनिट होती है ना पीछे उसको डेसिमल में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एंड में 10 मार्क्स में 7.5, ऐसा क्या मतलब है? असल में उसके 15 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही हुए हैं। तो इस बात पे कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज ना हो जाना कि डेटा में पॉइंट आया हुआ है लेकिन डिस्क्रीट है, क्या पता जो पीछे उसकी यूनिट है वो 0.5 हो। तो अगर उसकी यूनिट 0.5 है तो आपके पास डेटा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें तो पॉइंट आ सकता है, लेकिन जब आप उसको पीछे प्रॉपर पीछे बैक ट्रेस करोगे ना तो असल में जो एमसीक्यू है 15 आउट ऑफ 20 सही होंगे, उसमें यूज नहीं है। बट यू हैव टू नो कि डिस्क्रीट और उसमें क्या फर्क होता है। इसके बाद सेकंड चीज होती है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में होता है कि सिंपल डेसिमल में जो करना है करो। वेट है 60.1 kg, 72.45 kg, जो करना है करो। हाइट है 165.47 सेंटीमीटर, या फुट में लेके जाना है तो 6.775 फुट। जितना खेलना है आप खेल सकते हो, जितना आगे डेसिमल लेके जाना है लेके जा सकते हो। जो सबसे बेस्ट डेटा होता है वो हम कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है लोगों पे। अगर आप जेंडर देख रहे हो तो सबसे बेस्ट नॉमिनल होगा उसके लिए, आप बाकी डेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन देख रहे हो तो ये होगा, अगर आप वेट वगैरह मेजर करें तो ये होगा। अगर आप फंक्शंस देखो सबसे ज्यादा किस चीज के साथ कर सकते हो तो वो कंटिन्यूअस डेटा है। सबसे ज्यादा इसका मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ इसकी निकल सकती है, बाकियों की नहीं। अब हम आते हैं एनालिसिस पे। अब ये डेटा का जो 10 मिनट मैंने सर खाया ना, वो इस एनालिसिस का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए एनालिसिस में दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नाउ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डेटा एंड एनालिसिस इज के जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ना वो डेटा की सब टाइप है। जो एनालिसिस है वो एनालिसिस एक अलग चीज है। वो देखो तो साफ लिखा हुआ भी डिफरेंट एंड क्वालिटेटिव डेटा, वो डिफरेंट होता है। और उसकी रीजन ये है कि जो एनालिसिस होता है आप एनालिसिस दोनों टाइप के डेटा पे कर सकते हैं।
qualitative analysis can be done on categorical and numerical both variables. Similar for quantitative data analysis. Quantitative data analysis को आगे आएगा, वो कॉम्प्लेक्स होता है. सबसे पहले क्वालिटेटिव का सीन ये होता है कि this is basically descriptive analysis. Descriptive means to describe something. Simple example है. I am a male of 21 years old in 4th year MBBS class of Rawalpindi Medical University. My name is Faizan Shahzad. This is my introduction sort of. That's known as my description. आपने कहीं भी जाना है, you will introduce me as Faizan Shahzad, MS4 Rawalpindi, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. This is my descriptive data. अब आगे जाके मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्यों वो बात कर रहा हूँ, वो बात करने में मेरे क्या इफेक्ट्स हैं, जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूँ, स्पीकर बन रहा हूँ इस वेबिनार में, तो इसके पीछे क्या रीजन है. रीजन ये कि मैंने पहले सीखी हुई चीजें, मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने रिसर्च वगैरह की हुई. दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव दैट नॉलेज टू यू. ये जो पीछे रीजनिंग है सारी, वो आती है क्वांटिटेटिव डेटा में. उसको हम लोग इसीलिए, मैं दिखाता हूँ, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक कहते हैं. इन्फरेंशियल मीन्स आप किसी की अपना पीछे रीजनिंग चेक करें क्यों ऐसे हो रहा है. जो क्वालिटेटिव है वो सिर्फ बता रहा है कि ऐसे हो रहा है. It doesn't give a damn कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. It doesn't explain why it's happening. It only explains that it is happening. अब आपने दो टाइप ऑफ वेरिएबल अगर आपके, तो उसमें आपको कहते हैं वो अपने करना है अपना, एक मिनट, हाँ. जो दो टाइप के वेरिएबल्स हैं उसमें आपने कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दो वेरिएबल को देखना है. जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उसमें हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. ये सामने लिखा है. फ्रीक्वेंसी मींस के आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 40 मेल्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी मेल्स की कितनी हुई, 40. दैट्स इट, नथिंग एल्स. लेकिन जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, अगर उसमें हमने 5 बच्चों को टेस्ट दिया, इसके हाईएस्ट नंबर 5 दे सकते थे आप. बच्चों ने 34353 स्कोर किया. हमने उस टेस्ट का मीन निकाला, मीन हमारे पास आया 3.6. इसका मतलब ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 3 की रेंज में स्कोर कर रहे हैं. ठीक. मीडियन आया 4. जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो 4 है. यानी कि जो बीच वाले वैल्यू है, जो बिल्कुल एवरेज बच्चा है, वो 4 तक स्कोर कर सकता है. उससे ऊपर या नीचे मुश्किल है. और मोड 3 है. 3 मोड का मतलब जो सबसे कॉमन है वो 3 है. ये मीन मीडियन मोड सिखाते हैं 7 या 8 क्लास की मैथ्स में, और फिर 3rd ईयर या 2nd ईयर की स्टैटिस्टिक्स में भी सिखाते हैं. आप लोगों को इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए. ये जो चीज़ है ना, मीन मीडियन मोड, ये हमें हर जगह शेयर करनी होती है न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए. कैटेगोरिकल की सिंपल फ्रीक्वेंसी बताओ, आउट ऑफ 100 कितना था. दैट्स इट. ये चीजें जो है ना, ये भी स्लाइड में मिल जाएंगी. ये चीजें याद कर लो कि फ्रीक्वेंसीज, मीन मीडियन मोड, ये 4 चीजें आपने हर हर चीज की कैलकुलेट करनी होती है. लिटरली हर रिसर्च में करनी होती है. ये नहीं भूलनी चाहिए. इस पे लाइक मार पड़ने वाली बात है, तो ये वो चीजें. उसके बाद इन तीनों की डेफिनेशन आ गई है. मीन इज बेसिकली एवरेज. आप सबको प्लस करते हो, डिवाइड करते हो, तो टोटल नंबर से 3.6 आ गया हमारे पास. यानी हमारी जो मीन है इसकी 3.6 है. 3.6 की मीन का मतलब है अबव एवरेज बच्चे हमारे. 4 ये कि जो वो जो बच्चे हैं, जो आपने रिस्पॉन्सेज लिए हैं, उनकी मिडिल वैल्यू क्या है. मीडियन का नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 है, मिनिमम वैल्यू 3 है. ठीक है ना. तो वो मैक्स लेके मिनिमम हमने जाना. ये सॉरी यहाँ पे हाँ, ये लो. मैक्स टू मिनिमम की सबसे बीच वाली क्या वो है वैल्यू, वो कैलकुलेट करते हैं. अब इसको इजीली कैलकुलेट कैसे करना होता है. 5 + 3 डिवाइड बाई 2. आप मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू योर मीडियन, जो कि इस केस में हमारे पास आ गया 5 + 3 8/4. वो बाय 8/2 किया तो हमने 4 आ गया हमारे पास. खत्म. मोड मोस्ट कॉमन होता है. आपने देखना कौन सी वैल्यूज आई हुई हैं. सबसे कॉमन क्या है, मान लिया. ओके. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है. देखो डेटा जो होता है ना, वो आपका फैला होता है. इसको देख लो. मीडियन मिडिल 4 है, मीन 3.6 है, 3 इधर आया हुआ है, 5 उधर आया हुआ है. तो उसकी वजह से जो आपका डेटा है वो फैला होता है इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. सिंगल एक लाइन में नहीं होता. ठीक. सॉरी. एनीवेज,
तो ये चीज चेक करना है कि आपका जो डेटा है वो कितना ज्यादा फैला हुआ है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करती है। इसका सिंपल हम डेफिनेशन थे, स्क्वायर रूट है वेरिएंस का, ये मैथमेटिक्स है, इसको भूल जाओ, फजूल है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन बताती है कि जो आपका डेटा ये है ना, बीच वाला पूरा डेटा, वो कितना ज्यादा फैला हुआ है। इस वाले की स्टैंडर्ड डिविएशन, वन स्टैंडर्ड डिविएशन ये है, 0 से लेके 1 तक। परसेंटेज जो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ये इतना जो है ना, ये इसकी वन स्टैंडर्ड डिविएशन है। हमारे पास डेटा लंबा फैला होता है और उसका स्क्वायर रूट लेके हम कहते हैं कि चलो ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन है। आप लोगों ने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, वो जितनी बड़ी होगी उतना आपका डेटा फैला हुआ होगा। और उसको हम लिखते हैं किस तरह, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन। प्लस माइनस क्यों करते हैं? मीन होता है एवरेज, मिडिल वाली चीज। मिडिल वाली चीज के राइट और लेफ्ट दोनों जगह होते हैं लोग। ये मीन है, इसके राइट पे भी वैल्यूज होंगी, इसके लेफ्ट पे भी वैल्यूज होंगी। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एक साइड का ये वेरिएंस को शो करती है और दूसरी साइड वाली को भी शो करेगी। तो इसलिए प्लस माइनस एस जी लिखते हैं। इस प्लस माइनस का मतलब है कि जैसे ये 0 इसका मीन है और 1 इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो 0 से +1 करें यहाँ तक और -1 करें यहाँ तक, ये इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है पूरी। ठीक। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, हम कहते हैं कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर 34% डेटा आ जाता है। ये हम नॉर्मली जरूरी नहीं होता 34 आए, कभी 35 आ जाता है, कभी 33 आ जाता है। यूजली अगर इस तरह का कर्व बन रहा है ना, तो आपका एक डिवीजन में 34% डेटा खड़े खड़े आ जाएगा एक साइड का, और दूसरी साइड में 34%, तो टोटल मिला के 68% डेटा आपका एक स्टैंडर्ड डिवीजन में आएगा। हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो डबल साइड की होती है, ये सिर्फ प्लस पे नहीं होगा, माइनस पे भी होगा। तो जो ये डार्क ब्लू वाला पूरा एरिया है, ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस लिखते हैं, तो दोनों साइड की आएगी। और एक स्टैंडर्ड डिविएशन में ये रट्टा लगा लो या जो करना है, अभी कॉन्सेप्ट दिए, कॉन्सेप्ट में 68% डेटा आ जाता है आपका। ठीक। अब इस ग्राफ को इस वाले ग्राफ से कंपेयर करो, ये कितना पतला है। क्यों? इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन छोटी है, इसका डेटा इकट्ठा हुआ है, मीन के गिर्द इकट्ठा हुआ है, इसका डेटा मीन से फैला हुआ है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। आई समझ? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद होता है एक चीज, 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये चीज होती है जिसमें आपकी 95% वैल्यू हो जाए। यहाँ पे 68 थी। ठीक। कॉन्फिडेंस इंटरवल में 95% आ जाती है। 95% आती है यहाँ से, ये इधर से लेके -2 से लेके +2 तक। तो सिंपली स्पीकिंग जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो होता है 95%। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैंडर्ड डिविएशन को 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है। अब समझ आई बात? वन स्टैंडर्ड डिविएशन 68% डेटा, टू स्टैंडर्ड डिविएशन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें 95% डेटा आएगा। ये सिंपल तरीके हैं ये चेक करने के लिए आपका डेटा कितना चौड़ा है, कितना ज्यादा फैला हुआ है, बस दैट्स इट। ये ग्राफ है, अब इसमें लाल वाली वन स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो पिंक सा है ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ लिखा हुआ है 95.5%, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक। और बाकी कहते हैं वो आगे जाने की जरूरत नहीं, 99 वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लास्ट चीज होती है आपके पास, अब आ गया नॉर्मल या नॉन नॉर्मल डेटा। ये ग्राफ देखो किस तरह बीच में इसकी चोंच निकली हुई है, इट्स नोन एज अ बेल शेप कर्व। सिमिलरली ये भी, और ये मिडिल वाला भी बेल शेप है, इसको कहते हैं नॉर्मल डेटा। नॉर्मल है बिल्कुल नॉर्मल, बीच से जहाँ से शुरू हुआ कम से पीक पे पहुंचा, वापस कम हो गया। इसको कहते हैं नॉन नॉर्मल या स्क्यूड डेटा। स्क्यू का मतलब है डेटा एक तरफ इकट्ठा हुआ है, यहाँ से हुआ स्टार्ट, ऊपर पीक फौरन आ गई, फिर स्लो नीचे किया, दैट्स नोन एज अ नॉन नॉर्मल डेटा। और जो नॉन नॉर्मल डेटा होता है वो क्या कहते हैं, ये शो करता है कि जो आपके डेटा है वो इतना अच्छा नहीं है यूजली, लेकिन जरूरी नहीं होता। यूजली नॉन नॉर्मल को हम इतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो मीन होता है, मीन का काम होता है चेक करना कि जो आपका डेटा है उसकी एवरेज वैल्यू निकाले। तो अगर आपका डेटा सारा एक तरफ इकट्ठा हुआ है
तो आप क्या वाकई में जो आपकी पॉपुलेशन है उसका आप एवरेज बता रहे हो? तो ये मतलब हो कि आपने जो पॉपुलेशन उसमें से कुछ लोगों को उठा लिया जो आपके पसंद के थे या आपके करीब वाले थे, जो कि इस वाली जगह में थे, और बाकी को आपने मिस करा दिया। तो ये तो फायदा ना हुआ। रिसर्च रिसर्च तो आपने बराबर इक्वल करनी होती है। तो इसलिए नॉर्मल डेटा जिसमें सब कुछ बराबर बराबर हो वो अच्छा लगता है। और ये मेरे ख्याल से हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम एसपीएसएस पे जाएंगे और मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कि ऐसे कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताओ कि इज इट लाइक विजिबल एसपीएसएस? Yes, it is visible. थैंक यू। एसपीएसएस में अब किस तरह डेटा को लेके चलना है ये इस रिकॉर्डिंग में देख लो। इट्स लाइक इम्पोर्टेंट, क्योंकि एसपीएसएस इटसेल्फ एक और नया सॉफ्टवेयर है, नया इंटरफेस है, मुश्किल होता है कैलकुलेट कर चेक करना है कहाँ से क्या चीज़ें, लोगों से चीज़ें गुम जाती है, मुझसे भी गुम जाती थी। आई यूज टू टेक नोट्स के फाइल, फिर इम्पोर्ट डेटा, जैसे कि मैं करूँगा इम्पोर्ट डेटा, फिर आगे जाके एक्सेल पे जाना है, फिर एक्सेल की शीट करनी, कौन सी चीज़ टिक करनी, कौन सी चीज़ टिक नहीं करनी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स एमसेप मैंने किया था। आई एक्चुअली हैड डेटा फ्रॉम माय ओन स्टडीज कल परसों, लेकिन वो 300 400 का सैंपल साइज है अलॉन्ग विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। सो इसलिए आई चोज द simplest possible data that I could find on the net. It's basically 6 to 7 columns with 50 responses. Everything is very simple. Open. Open करते हुए you have to make sure दो तीन चीजें. You have to take all of these options. What happens is कि leading and lagging space is basically मैं दिखाता हूँ तक. जैसे ये है ना, like this अपना spreadsheet. If there's a whole white space left before 5, that's known as a leading phase. Leading space means कि 5 से पहले जगह है. In this stuffed monkey, there's space after stuffed monkey. That's a lagging space. Fuzzy dog में दोनों है. It has both leading and lagging space. Leading and lagging space can sometimes leads to errors. SPSS देखता है कि स्पेस है तो वो आपके वेरिएबल को उठाता ही नहीं, वो कहता है कि ये डेटा एंट्री मिसिंग है क्योंकि उसमें खाली जगह है, हालांकि खाली जगह नहीं है. So that's why we click on it to ignore the leading and trailing spaces. Leading means वो coming और lagging means वो जो दूसरे वाली है. If I detect this, तो देखो बीच में किस तरह उसने स्पेस ले आया, और मैं दोबारा टिक करूंगा बिल्कुल सीधा ले आया. दैट्स नोन एज वो आपकी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस. देन वी क्लिक ओके. नाउ व्हाट विल हैपन इज के एसपीएसएस आपके डेटा ओपन कर देगा. दो चीजें याद रखनी. नंबर वन, नेवर एवर एंटर डेटा डायरेक्टली ऑनटू एसपीएसएस. हमेशा एक्सेल शीट रखो. यू ऑलवेज नीड अ बैकअप. ठीक. सेकेंडली ये कि एक्सेल के इतने सारे फंक्शंस हैं, यू कैन इवन मेक चार्ट्स इन इट. एसपीएसएस में यू कैन मेक चार्ट्स, लेकिन वो इतने इजी नहीं होते. एसपीएसएस को सिर्फ एनालिसिस के लिए रखो. दैट्स लाइक अ प्रोफेशनल टिप जो कि सब लोगों को नहीं पता होती. देन हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया. अब मैं तुम्हें थोड़ा सा विंडो का बता दूं. दिस इज योर वेरिएबल्स जो वहां पे थे ना अपने वहां पे कॉलम है. ये देखो वेरिएबल्स में टॉप पे हेडिंग्स के ऊपर एसपीएसएस हमेशा जो फर्स्ट रो होते हैं, रो ये जो हेडिंग्स है उनको एज वेरिएबल्स पकड़ लेगा. एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स विल बी टेकन एज देयर वैल्यूज. जैसे कि यहाँ से लेके सारा उसने एंड में उसके रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट कर लिए. ठीक. नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द रिस्पॉन्सेज. क्लियर. अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं, ये सारे वेरिएबल आ गए. यहाँ पे ऑपरेट करना मुश्किल है. देयर लाइक 50 रिस्पॉन्सेज, कंफ्यूज रहता है बंदा. उसके लिए वी हैव वेरिएबल व्यू. वेरिएबल व्यू की एक बड़ी अच्छी बात है कि वेरिएबल व्यू हैज ऑल ऑफ दिस वेरिएबल्स ओनली एंड इट हैज नो, आई रिपीट, नो डेटा. देयर इज नो डेटा. देखो डेटा जो है वो डेटा व्यू में ये सामने. वेरिएबल व्यू में सिर्फ आपके 6 वेरिएबल बताए हुए, दैट्स लिटरली इट, और कुछ भी नहीं. तो ये बहुत सिंपल होता है. अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले इनको सीधा करना है मेजर में. मैं आपको बताता हूँ होता क्या है. नेम इज द वेरिएबल नेम. टाइप इज बेसिकली न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग वेरिएबल इज नोन एज क्वालिटेटिव, जो मैंने आपको बताया था ये वाले. आ, इनको स्ट्रिंग वेरिएबल्स कहता है एसपीएसएस. एंड जो न्यूमेरिक है उनको न्यूमेरिक कहते हैं. ठीक. मोर ओवर ये डेसिमल्स को छोड़ दो, लेबल्स को छोड़ दो, इट्स ओके. वैल्यूज बाद में समझाऊंगा. मिसिंग कोई नहीं है, शुक्र है.
This is columns which